آج ویو 360 میں ایران سے تیل کی درآمد پر امریکی پابندیوں سے استثنا ختم، خریداروں کا رد عمل منفی۔ امریکہ کی جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گھریلو تشدد ایک بڑا مسئلہ، سنیے 2 پاکستانی خواتین کی کہانی۔ اور ایک امریکی اسکول کے طالب علموں نے بنایا اپنا اسٹاک ایکسچینج۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ داعش نے سری لنکا میں ایسٹر کی صبح ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل سری لنکن عہدیداروں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ حملے مسلمان شدت پسندوں نے کسی غیر ملکی گروہ کی مدد سے کیے ہیں۔ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 321 تک پہنچ چکی ہے۔ ملک بھر میں آج یوم سوگ منایا گیا۔ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا بھی آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ جنازوں میں سری لنکا کے صدر میتریپالا سری سینا نے بھی شرکت کی۔ سری لنکن عہدیداروں کو اس وقت سخت دباؤ کا سامنا ہے کیونکہ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ حملوں سے متعلق انٹیلیجنس وارننگز پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے اب تک 40 افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا۔ امریکہ نے ایران سے تیل کی تجارت کرنے والے ملکوں کو مالی پابندیوں سے دیا گیا عارضی استثنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ 2 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ ایران سے 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی تیل کی تجارت پر گزشتہ سال پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا اور ایرانی تیل کے بڑے خریداروں کو متبادل ذرائع تلاش کرنے کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی تھی، جس کے بعد انہیں ایران سے تیل خریدنے پر مالی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب۔ امان، اب تیل کی سپلائی میں ایک ممکنہ کمی کے پیش نظر عالمی منڈی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جن ملکوں کو استثنا دیا گیا تھا وہ بھی علاقائی قوتیں ہیں، جیسے چین ہو گیا، بھارت، ترکی، تو کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے سارا، سب سے پہلے تو پیر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اس جو ریسٹرکشنز دوبارہ سے آئیں گی، اس کے نتیجے میں جو بھی انٹرنیشنل منڈیوں میں جو بھی کمی ہوگی اس کو اوپیک اور سعودی عربیہ جیسے جو ممالک ہیں وہ مکمل طور پر اس کو کمی کو پورا کرنے کے متحمل ہیں۔ یہ بات تو ان کی جانب سے سامنے آئی، سو ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے۔ دوسری طرف جن ممالک کی آپ نے گفتگو کی اس میں چین اور ترکی کی جانب سے خاصا سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ چین نے تو اس کو جورسڈکشن کا ایشو قرار دیا اور ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام جو مسائل ہیں اور اس کا ایک احاطہ میں نے اس رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، آئیے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چین کے رد عمل کی تفصیل ہم نے دیکھی۔ چین کے بعد بھارت ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، کیا پوزیشن ہے نیو دہلی کی اس بارے میں؟ جی سارا، نہ صرف یہ کہ بھارت کا خاصا دار و مدار تیل کے حوالے سے بھی ہے ایران پر، اس کے علاوہ اس کے ایک پولیٹیکل اور کلچرل ٹائز، تعلقات بھی ہیں ایران کے ساتھ، وہ ایک صورتحال بھی ہے۔ اور بھارت ان ممالک سے میں شامل ہے جنہوں نے ان ویوز کی ایکسٹینشن کی درخواست بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو انڈین آئل منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا منگل ہی کو کہ بھارت دوسرے جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان سے تیل خرید کر اپنی جو کمی ہے اس کو پورا بھی کر سکتا ہے، اور کہ جو بھارت کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ کسی بھی اس حوالے سے جو ممکنہ جو بھی کنزمپشن ڈیمانڈ ہوگی اس کو پورا کرنے کی تمام تر صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جی امان نظر ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ امان فار دس اپڈیٹ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ایران بھی اس وقت توجہ کا مرکز ہے۔ وجہ ہے وزیر اعظم کا یہ بیان کہ پاکستان سے ایران میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ ایران کا بنیادی مقصد 2 طرفہ سیکورٹی امور پر بات چیت کرنا ہی تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایران پاکستان کی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردوں سے متاثر ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین سے دوسرے کے یہاں دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ امید ہے اس سے ہمیں بھروسہ پیدا ہوگا۔ اب دونوں ملکوں کی قیادت نے بارڈر کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بیرون ملک یہ تسلیم کر کے کہ پاکستان سے سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں بہت بڑی غلطی کی ہے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو کانٹیکسٹ سے باہر لیا جا رہا ہے، یعنی سیاق و سباق کے ساتھ نہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے واشنگٹن میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر سید محمد علی سے۔ علی، ویلکم ٹو ویو 360۔ تو کیا یہ ڈپلومیٹک بلنڈر ہے یا یہ اس کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے کچھ مختلف طریقے سے؟ شاید جی نیت تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اس بیان میں کہ ہم ایک اعتراف کر رہے ہیں ایک مسئلے کا جو بین الاقوامی سطح پر تو یہ کھل کر کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں،
मगर देखिए अब उसका बयान कैसे किया गया, तो बयानिया में कुछ खामी थी. अब जस्टिफिकेशंस ये पेश की जा रही हैं कि नहीं, हमने वहाँ का भी जिक्र किया कि ईरान जो है वो ईरान से हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, मगर वो उस बात में इक्वल वजन नहीं था. और तो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से क्या इसके नतीजा हो सकता है? देखिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कि पाकिस्तान का एक तो जो अंदरूनी सियासत है, और जो एक हुकूमत आकर कहती है कि वो इधर जा रहे थे, हम उधर जाना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो वाली सियासत को फॉरेन पॉलिसी में लाना जो है वो अकल मंदी का सबूत नहीं है. और अगर हमने ये इतराफ़ करना भी है कि यहाँ से क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होते हैं, तो फिर उसके अंदर देखिए अब यादव जो इंडियन रॉ एजेंट थे, जो हम कहते हैं हमने उनको पकड़ा, वो यकीनन ये है कि जंदुल्ला और अब ये जैश अदल, ये जो नए ग्रुप्स हैं ये बन गए हैं और वहाँ मुसीबत कर रहे हैं. मगर जो पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर, तो वो इक्वल वजन के साथ अगर बात होती, बिकॉज उसमें फिर और भी अनासिर जो है वो मुलव्वस हैं. तो एक आपका कहना है कि इक्वल वजन के साथ बात होती है, और दूसरा ये कि अगर मुल्क की अंदरूनी सियासत के जो मसाइल हैं या जो नैरेटिव वहाँ से उभरता है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जगह ना दी जाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक यूनिटी शो की जाए, पॉलिसी में एक तसलसल शो किया जाए. अब ये देखिए कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने इस बात पे भी इत्तेफाक किया कि एक बॉर्डर फोर्स क्रिएट की जाए. कितनी मौसर हो सकती है ये? इस फोर्स का तो को क्रिएट करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसमें यह है कि अगर अब वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने वसाइल जाते हैं, इसमें कितनी सीरियसनेस होती है, और यही जो सियासी इशू हैं, अगर ये पेचीदगियां बीच में नहीं आ जाती तो यकीनन कोऑपरेशन करना इस तरह का, उसमें तो कोई हर्ज इफेक्टिव हो सकती है. एक और चीज़ जिसका जिक्र ईरान के सदर ने किया, वो ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी सरहद तक तो बन गया, आप इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएं. एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए वही अमेरिकन सैंक्शंस हैं, जिनकी अभी हमने बात भी की. क्या फ्यूचर नजर आता है आपको पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एनर्जी की ट्रेड का? मतलब ये बड़ी देर से बात हो रही थी. इंडिया तो निकल गया इस पाइपलाइन से, पहले इप्पी थी ये, इंडिया पाकिस्तान ईरान, और अभी भी जो इशारे आ रहे हैं कि इंडिया की तो और अमेरिका के साथ इतने ताल्लुकात भी हैं, और वो तो ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि उस बिगर गेम के अंदर अगर ईरान के साथ पहले जो उन्होंने एक्सेप्शन ली हुई थी चार बहार के लिए, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन शामिल थी, तो वो तो और तरीके से सोच रहे हैं. पाकिस्तान और ईरान जो है, शायद इशारा इस तरफ किया गया कि शायद कोई बार्टर टाइप अरेंजमेंट हो कि वो हमें अपना तेल दें और हम उसके बदले जो है थोड़े से पैसे लगाएं और अपनी तरफ से पाइपलाइन को मुकम्मल करें. मगर अब द डेविल विल लाई इन द डिटेल. अब एलिस वेल्स भी जो हैं वो भी पहुंची हुई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से खलीलजाद जो हैं ये सारे दौरे होंगे, तो ये हैमर आउट होगा. IMF के साथ भी हमारी टॉक्स हो रही हैं. अब IMF अभी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. कोई कह लीजिए कि कलील मुद्दत में, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा तरीकाकार जिससे पाकिस्तान अमेरिकन सैंक्शंस को भी दावत ना दे और ईरान के साथ अपनी एनर्जी ट्रेड के प्रॉस्पेक्ट्स को भी मजीद इंप्रूव कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान. अब इस दफ़ा भी ये बात हुई कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको गवादर की पोर्ट से लिंक करने का मशवरा दिया सदर हसन रूहानी ने. ग्वादर में हम जानते हैं कि सऊदी अरब भी अब एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम कर रहा है. ये डायनामिक्स आप किस तरह देखते हैं, आगे कैसे मूव कर सकेंगे? ये इसमें जी माशी डायनामिक्स है, और जो पहले हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे उसके अंदर भी लिंक्स हैं, क्योंकि अगर यहाँ से दहशत गर्दी हो रही है और जो जिस तरह के ग्रुप्स कर रहे हैं, अब आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की कितनी कशीदगी है आजकल भी और माजी में भी, तो वही उसकी सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस भी हैं. और ये इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट, जिस तरह अगर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ करना पड़ेगा, जो आगे इसकी वजाहत होगी कि क्या ये हो सकता है कि नहीं, इसी तरह की जो बात है ये सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ भी एक जगलिंग एक्ट, एक बैलेंसिंग एक्ट होगा पाकिस्तान के लिए बिटवीन बोथ ऑफ दोस कंट्रीज. सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का. थैंक यू. दो आला अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स और ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान और इलाके के दीगर मुल्कों के दौरे पे हैं. तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आपको ये खबरों के साथ साथ मिलेंगे दिलचस्प मज़ामीन, वीडियोज़, फेसबुक लाइव न्यूज़ बुलेटिन और उसके अलावा फेसबुक लाइव इंटरव्यूज़ भी.
पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशिया के दीगर मुल्कों में घरेलू तशद्दुद कितना बड़ा मसला है, इस बारे में अक्सर बात होती है। एक और तल्ख हकीकत यह है कि अमेरिका में बसने वाले जनूबी एशियाई घरानों में भी ये एक संजीदा मसला है। मदद के लिए अमेरिका में वसाइल की तो कोई कमी नहीं, लेकिन अक्सर तालीम की कमी, अंग्रेजी जुबान ना जानना और ख़ानदान का दबाव शादी करके पाकिस्तान से अमेरिका आने वाली ख़वातीन के पाँव की जंजीर बन जाते हैं। इरम अब्बासी आज हमें दो ऐसी ही ख़वातीन की कहानी न्यूयॉर्क से दिखा रही हैं। हमने उनकी दरख्वास्त पे नाम और आवाज़ें इन ख़वातीन की तब्दील कर दी। आइए जानते हैं इनकी कहानी। 25 साला मारिया शादी के बाद 2017 में पाकिस्तान से न्यूयॉर्क आई थी। पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका में मुकीम ससुराल का ताल्लुक अपने ही गांव से था। एक माह तो सब ने बहुत अच्छा सलूक किया, मगर उसके बाद सब कुछ बदल गया। न सिर्फ शौहर बल्कि ससुर ने भी कई महीने तक मुबैना तौर पर मारिया का रेप किया। ससुर पहले मुझे बोलता था मेरे साथ आकर बैठो, फिर मुझे मालिश का बोलने लगा। मैं समझी वो मुझे बेटी की तरह समझते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। फिर 2 महीने बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। इसके बाद जब भी उनका दिल चाहता वो मेरा रेप करते। मैं भागने की कोशिश करती तो वो मुझे लातों और बेल्ट से मारता था। मेरा शौहर शराबी था, दूसरी लड़कियों को घर लाता था। मैं इसलिए वापस आई हूँ कि अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले सकूं। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सखी के मुताबिक अमेरिका आने वाली हर 5 में से 2 जनूबी एशियाई खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, जबकि 2015 के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में भारतीय और पाकिस्तानी घरानों में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों का कहना है कि घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, मगर साथ ही साथ ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जहाँ पर खानदान की इज्जत या फिर समाजी और रवायती रुकावटों की वजह से खवातीन मदद लेने से घबराती हैं। इन खवातीन में रुबीना भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान में अपनी 4 साला बेटी छोड़कर यहाँ अमेरिका आई हैं ताकि बेटी का मुस्तकबिल बेहतर बना सके। 16 बरस में निकाह हुआ, 18 की थी जब शौहर उन्हें अमेरिका ले आए। शौहर का खानदान लाहौर से है, मगर उनकी पैदाइश और परवरिश अमेरिका में ही हुई। शोहर किसी और को पसंद करता था। घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवाई और मुझे ये सब मालूम नहीं था। शोहर मुझे पूछता नहीं था। मेरे ससुराल में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था। मेरे बाहर जाने पर पाबंदी थी। घर वालों से बात नहीं करने देते थे। मैं ऐसी घुटन में रहकर जैसे पागल होती जा रही थी। रुबीना अब इस इकना शेल्टर होम में रहती हैं। इकना या इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका मुसलमानों के हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम है। रुबीना का मिशन है कि यहाँ आने वाली घरेलू तशद्दुद की मुतासरा खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद करें। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। रुबीना इकना के शेल्टर होम के मुंतज़मीन में से एक हैं। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मुल्क भर में 17 शेल्टर होम हैं और सिर्फ न्यूयॉर्क के शेल्टर होम में पिछले 1 साल के दौरान घरेलू तशद्दुद से मुतासरा तकरीबन 40 खवातीन पनाह लेने आई हैं। एक अरसे तक तो अमेरिका के जनूबी एशियाई कम्युनिटी में घरेलू तशद्दुद के मसले को दबाया जाता रहा है, लेकिन यहाँ आंख खोलने वाली नस्ल में जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद को रिपोर्ट करने का रुझान बढ़ रहा है। शौहर से अलहदगी के बाद अमेरिका में एक पाकिस्तानी औरत की जिंदगी कैसी हो सकती है, इसकी कहानी कल आपके लिए वर्जीनिया से नुखबत मलिक लेके आएंगी। पेश है उसकी एक झलक।